Students, today we will read about the chapter Jalebis. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. In this chapter, a boy's description is given. He is very honest. On his way to school, he was having some money and he had to pay the school fee by that money. The sight of crisp sirpi jalebis in the market excites him. Means jalebi was there in the market and jalebis attracts him. And the coins in his pocket begin to jingle and they started to jingle. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. Continuously he struggled not to eat that jalebis, but jalebis was attracting him. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school. Here the narrator described that when he was reading in the government school and he was in 5th standard and the school is situated Kambelpur, now it is called Atak. नरेटर यहाँ पे आपको बता रहा है ये काफ़ी सालों पहले की बात है जब वो गवर्नमेंट स्कूल में कम्बेलपुर में जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पे 5th क्लास में पढ़ता था. अब कम्बेलपुर को अटक नाम से जानते हैं. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस. एक दिन मैं स्कूल में गया, अपनी पॉकेट में 4 रुपीज़ मैंने ले रखे थे और मुझे उस पैसे से स्कूल फ़ी के लिए पे करना था. एंड द फंड आई हैव टू पे विद दैट मनी. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad. जब मैं गया तो मैंने पाया जो टीचर फ़ी कलेक्ट करते थे, his name is mentioned here, Master Ghulam Muhammad was on leave. वो लीव पर थे. And so the fees would be collected the next day. इसीलिए एक्सपेक्टेड था जो फ़ी है वो नेक्स्ट डे कलेक्ट करनी है. All through the day the coins simply sat in my pocket. पूरा दिन जो कॉइन्स वो मेरे पॉकेट में रहे. बट वन स्कूल गोट ओवर, लेकिन जैसे स्कूल ख़त्म हुआ एंड आई वॉज आउटसाइड, मैं स्कूल से जब बाहर गया, दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने कॉइन्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया. मीन्स कॉइन स्टार्टेड टू जिंगल. मीन्स द नरेटर डिस्क्राइब्ड अबाउट एन इंसिडेंट विच हैपन्ड विद हिम बिफोर मैनी ईयर्स व्हेन ही यूज्ड टू रीड इन 5th स्टैंडर्ड and the school was situated in Kambelpur, now it is called Atak. When he went to pay the school fees, there was the teacher named Master Ghulam Muhammad. He was on leave, so the fee must be collected the next day. And when he outside after the bell, when he outside the school, suddenly what happened? The coins started to jingle. All right, coins don't talk. Narrator agrees with the point that I know that coins don't talk, but on that day they were creating the sound of jingling. They jingle or go kanak kanak. But I am telling you that day they actually spoke. On that day they really speak. One coin said, "What are you thinking about?" तुम क्या सोच रहे हो? Those fresh hot jalebis coming out of the kadhao in the shop over there. वहाँ शॉप है और कढ़ाई में गरम गरम जलेबीज़, फ्रेश जलेबीज़ बन रही हैं. देन व्हाट आर यू थिंकिंग? दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. वो अब अकेले बाहर नहीं निकलने वाली है. मीन्स यू हैव टू परचेज दीज. मीन्स जलेबीज़ आर मेंट टू बी ईटन. वो तो खाने के लिए बनी है. एंड ओनली दोज विद मनी, केवल पैसे से ही उसे ख़रीदा जा सकता है. एंड यू आर हैविंग इन योर पॉकेट सो यू कैन ईट देम. और आपके पॉकेट में पैसे हैं इसीलिए आप खा सकते हैं. एंड मनी, बिकॉज मनी जो है यू हैव टू स्पेंड इट ऑन हॉट फ्रेश सिरपी जलेबीज़. लुक हेयर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम. मैंने कहा कि भी देखो तुम 4 रुपीज़ जो मेरी पॉकेट में हो, आई एम ए गुड बॉय एंड डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. मुझे मिसगाइड मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. मुझे मीन्स
घर पे इतना ज़्यादा मिल जाता है कि जो मार्केट में किसी भी चीज़ पर अगर उसकी नज़र पड़ती है मीन्स खाने के लिए, वो उसके लिए एक सिन के इक्वल है। मीन्स बाज़ार में हर चीज़ की तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे घर पर सफिशिएंट मिल जाता है खाने के लिए, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ बाहर की चीज़ के लिए। बिसाइड्स यू आर माई फीस, और इसके बावजूद तुम मेरी फ़ीस के लिए हो, एंड फंड बनी, और मुझे फ़ंड भी पे करना है। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, लेकिन अगर आज मैं तुम्हें खर्च कर दूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, तो कल स्कूल में मैं गुलाम मोहम्मद जो हमारे मास्टर हैं हु इज़ यूज टू कलेक्ट द फ़ी, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और क़यामत पर अल्लाह मियाँ को कैसे। यू प्रोबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, शायद तुम्हें पता नहीं होगा जब गुलाम मोहम्मद गुस्से में आते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और बेंच पे आपके खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, वो सिंपली भूल जाते हैं आपको लास्ट में अपनी आफ्टर द बेल आपको बिठाना। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस, इसीलिए अच्छा है कि तुम मेरे कान खाना बंद कर दो, एंड लेट मी गो होम स्टेट, और मुझे सीधे घर जाने दो। द क्वाइंस डिसलाइक वट आई वुड सैड सो मच, क्वाइंस को बात पसंद नहीं आई जो कुछ मैंने उन्हें कहा। दैट ऑल ऑफ दैम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, और तभी सारे एक साथ बोलने लगे। देयर वॉज सच ए क्लैमर, वहाँ पे एकदम से चारों तरफ क्लैश की साउंड होने लगी, मीन्स चारों तरफ शोर शराबा होने लग गया। दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आइज वाइड विद सरप्राइज, जो बाज़ार में आने जाने वाले थे वो सरप्राइजिंगली मुझे देखने लगे, मेरी तरफ घूरने लगे। एंड माई पॉकेट, कभी मेरी तरफ घूमे कभी मेरे पॉकेट की तरफ घूरी। द क्वाइन ऑफ दोज डेज द रेस्ट थिंग्स मेड सो मच मोर नॉइजी टू, वो पैसे जो कभी उन दिनों बहुत ज़्यादा शोर किया करते थे। फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फॉर देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, एंड देन दे वर साइलेंट, अंत में मैंने घबरा कर उन्हें पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखा। देन दे वर साइलेंट, तब वो चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप, जैसे ही मैंने कुछ स्टेप्स आगे रखा मैंने अपनी पकड़ को लूज़ किया। इमीजिएटली द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, तब सबसे बड़े क्वाइन ने मुझे कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट विल बी फॉर योर ओन गुड, इससे आपकी ही भलाई होगी। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल्ड अस इंस्टीड, लेकिन तुम तो मुझे ही भला बुरा कह रहे हो, इसके बावजूद मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे ही उल्टा मेरे जो स्ट्रगल कर रहे हो, मीन्स स्ट्रैंगल मीन्स आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज़, मुझे ऑनेस्टली बताइए क्या आप हॉट जलेबीज़ खाना पसंद नहीं करोगे। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, या फिर आज तुम हमें खर्च कर दोगी। वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या कल तुम्हें स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स तुम हमें आज खर्च कर सकते हो और कल तुम स्कॉलरशिप वाले पैसे से अपनी फ़ी पे कर सकते हो। स्वीट्स विद द फीस मनी, आप फीस वाली मनी से स्वीट्स खरीद सकते हो। फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप मनी से आप फ़ी पे कर सकते हो। एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा ख़त्म पैसा हज़म। बट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है। आई रिप्लाइड, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग इधर, लेकिन इतना गलत भी नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, तुम इधर मुझे बहकाना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन बॉय, मैं कॉमन बॉय नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ इधर, और यहाँ तक कि जो जलेबीज़ बन रही हैं वो भी कॉमन जलेबीज़ नहीं हैं। दीज आर क्रिस्पी फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली, लेकिन मैं इतनी ईजीली हार मारने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, स्कूल में मेरा बहुत अच्छे प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स में नाम था। मीन्स आई वॉज कंसिडर्ड अ ऑनेस्ट बॉय। In the 4th standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month.
यहाँ तक कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था मंथ में 4 रुपीज़ का। मीन्स इन एवरी मंथ आई हैव टू गेट 4 रुपीज़। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली। इसके बावजूद मैं एक बहुत अच्छे प्रॉस्पर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो आई इंजॉयड कंसीडरेबल प्रेस्टीज। इसीलिए मुझे मेरा भी कुछ प्रेस्टीज इशू है, मीन टू से मेरा भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। आई वुड नेवर वंस बीन ई बीटन सो फार। मैंने आज तक एक बार भी, अभी तक मुझे कभी भी किसी भी की तरह की कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, मुझे कभी नहीं पीटा गया। ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज़। इसके बावजूद मास्टर जी मुझे कई बार दूसरे बच्चों की पिटाई करने के लिए बोल देती हैं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज़। और ऐसे रेपुटेड वाला बच्चा बाज़ार के बीच में खड़ा होकर जलेबियाँ खाएं, इज़न्ट राइट? नो इट वॉज नॉट राइट। ऐसा ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया। आई क्लेंच द रुपयाज़ इन माई फिस्ट एंड केम होम। मैंने अपनी फिस्ट में पैसे को पकड़ लिया और मैं घर आ गया। मीन्स हियर द नरेटर वॉज protesting with these things that he is not going to get any kind of jalebis with the 4 rupees because he was considered as an honest boy. The coins were so keen on being spent that day, but जो coins थे उन्हें उस दिन खर्च होना था ऐसा लग रहा था। They kept up their attempts at persuasion till their voice began to choke. और वो मुझे लगातार इस अटैम्प्ट्स की तरफ मीन्स खर्च करने के लिए लगातार मुझे अपनी तरफ करते रहे और मेरा मीन्स आवाज़ भी बंद नहीं हुई। When I reached home and sat on the bed, जब नरेटर घर गया और बेड पे बैठ गया, they begin to speak, उन्होंने दोबारा बोलना स्टार्ट कर दिया। I went inside to have lunch, जब मैं लंच करने के लिए अंदर गया, they begin to sit, दोबारा उन्होंने खनकना स्टार्ट कर दिया। Thoroughly fed up, अब मैं इन चीज़ों से fed up हो गया। I raced out of the house barefoot, मैं नंगे पैरों से अंदर घर में गया। एंड ran towards the बाजार, और दोबारा से बाजार की ओर दौड़ पड़ा। टेरिफाइड आई वॉज, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वेट ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज़, लेकिन मैंने हलवाई को कहा 1 रुपी का पूरा जितना वेट होता है, मीन्स 1 रुपी किलो दे कैन परचेज। तो हलवाई को बोल दिया 1 किलो मेरे लिए वेट कर दीजिए। His astonished look seemed so to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. अब हलवाई भी उससे पूछने लगा कि भाई वो सरप्राइजिंग मुझे देख रहा हो कि मेरा बैग कहाँ है जिसमें मुझे वो जलेबियाँ डलवानी हैं। Those were inexpensive days, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा inexpensive days था, मीन्स सस्ता टाइम था, उसमें आप जलेबीज़ को 1 रुपी किलो भी खरीद सकते थे। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ दोज नाउ डेज। आजकल जितना आप 20 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो उस टाइम पे आप 1 रुपी में आप परचेज कर सकते थे। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर को फैलाया। एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उस पर जलेबीज रख दी। मीन्स इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी कम टू नो दैट देयर वॉज ए बॉय who was studying at the time in 5th class in a government school. He was having the money 4 rupees means, and he had to pay the school fee. But the coins were struggling with the idea that he had to spend that money on these fresh jalebis whom the halwai was preparing at that time in the bazaar. He was protesting by this thought that he shouldn't buy the jalebis, but at last he was agreed and he went to halwai and he asked the halwai to weight 1 kilo in 1 rupees. So in the next video what we read the next part, means further what happened with him after buying the 1 rupees jalebis. I hope